Good morning friends, welcome to Mayuri's Point. Today in this video we will discuss about control structures in C. So let's see. Let's start with control structures in C. Any computer program when compiled and executed will get executed sequentially. अगर जो भी कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो जब कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है वो सिक्वेंशियली स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होता है. इन जनरल द कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम इज आइदर सिक्वेंशियल और इटरेटिव. The example of sequential control is the if statement, if else, switch case, and the example of iterative control is the while, for, do while. So in this video we will discuss about sequential control. If statement, if else statement. The simplest form of the control statement is the if statement. We are starting with if statement. The simplest form of the control statement is the if statement. Number 2 point is it is very frequently used in decision making and allowing the flow of program execution. ये frequently used होता है और decision making के लिए and flow of a program execution के लिए use होता है. Number 3 point is the if structure has the following syntax. If in bracket condition, which was your execution condition, and in the brackets that statements to execute the condition. Fourth point is statement. Syntax में जो statement है वो क्या काम करता है उसके बारे में. द स्टेटमेंट इज एनी वैलिड सी लैंग्वेज स्टेटमेंट. जो सी लैंग्वेज में वैलिड हो सकता है वो कोई भी स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं. नंबर 5 पॉइंट इज कंडीशन. फॉर कंडीशन नंबर 1 पॉइंट इज द कंडीशन इज एनी वैलिड सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन. नंबर 2 पॉइंट इज frequently logical operators are used in the condition statement. Logical operators हम use करते हैं condition देने के लिए. And number 3rd point is for condition. Number 3rd point is the condition part should not end with a semicolon. मैंने आपको C लैंग्वेज में मेरे पहले के वीडियोस में बताया था कि हमें अगर एंड करना है हमारे C के स्टेटमेंट को तो हमें टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन को हम एज ए टर्मिनेटर यूज करते हैं सी लैंग्वेज में. तो टर्मिनेटर को यूज करना पड़ता है, लेकिन हम जब इफ और ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेटर को यानी कि सेमीकोलन को यूज नहीं कर सकते. Number 6 point is the command says if the condition is true then perform the following statement. If the condition true then perform the condition inside the if condition brackets. If the condition is false then it skips that statements inside the if condition brackets and control goes to the outside statements of if conditions. Flowchart of simple if control is first is check the condition. if condition में जो statements है वो check होंगे. if condition true then statement inside the if condition, वो if condition में जो statements है वो perform होंगे. if the condition if is false, अगर if condition में जो condition है वो execute करके false आ रही तो वो false में जाकर false side में मतलब if condition के बाहर जो statements है वो execute होंगे. Here I show the execution of if condition with example. So let's see. In if in bracket category equal to sports bracket completes brackets marks equal to marks plus bonus marks. ये टर्मिनेटर ऑपरेटर मीन्स सेमीकोलन. देखिए यहाँ पे हमने if के बाद में सेमीकोलन नहीं दिया है क्योंकि यही रूल है कि हम if के बाद में टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते. ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन आउटसाइड द ब्रैकेट printf परसेंडिंग मार्क्स ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन. अभी यहाँ पे हमने देखा होगा कि हमारे 10th और 12th के मार्कशीट में अगर कोई जो स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है तो उसके सर्टिफिकेट में हमें बोनस मार्क्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो मिलते थे और जो नहीं बिलोंग करते थे उनके मार्कशीट में वो नहीं प्रिंट होके आते थे. फिर वो कैसे हो सकता था इन एग्जीक्यूट. तो इफ अगर कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स, अगर वो स्टूडेंट है उसकी कैटेगरी स्पोर्ट्स लिखी हुई है तो
मार्क्स में, उसके मार्क्स में इक्वल टू मार्क्स, उसके जो मार्क्स है उसने जो एग्जाम में मिले हैं उसे, वो प्लस बोनस मार्क्स जो स्पोर्ट्स में मिलते हैं वो प्लस करके मार्क्स में काउंट होंगे एंड देन इट प्रिंट्स मार्क्स। अगर वो स्टूडेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स में नहीं बिलोंग करता है तो वो इस ब्रैकेट में, इस कंडीशन में आएंगे ही नहीं, वो सीधा डायरेक्ट मार्क्स को प्रिंट करेंगे। ये इस तरह से इफ कंडीशन, इफ द कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स इट्स ट्रू देन इट गोज टू इनसाइड द ब्रैकेट्स, अदरवाइज इट डायरेक्टली प्रिंट्स द मार्क्स, जो भी कोई मार्क्स हो गए वो स्टूडेंट के वो। The second is the if-else construct. The syntax of if-else construct is as follows. If in bracket condition, in bracket statement 1, bracket close, else part, in bracket statement 2, bracket close. If condition is true, then if part means statement 1 part will be performed. If condition is false, then control comes to else part and statement 2 will perform. The flowchart of if-else control is first condition will be executed. If the condition is true, then control goes to true part, which is true block statements, and if the condition is false, then control goes to else part, which is false block statements. Here the if-else statement points are, first point is the if-else is actually just an extension of the general format of if statement. ये सिर्फ एक extension है else के साथ. Number 2, if the condition if is true, then statement 1 is executed. Number third point is if the condition if is not true, then execution comes to else part and statement 2 is executed. मीन्स अगर इफ की जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो हमने इफ पार्ट में जो स्टेटमेंट 1 लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, देन कंट्रोल कम्स टू एल्स पार्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो हमने एल्स पार्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ में कंडीशन है एज लेस देन 18, देन इफ में हमने ब्रैकेट में अगर एज लेस देन 18 है तो हम प्रिंट करेंगे एज इज लेस देन 18। फिर एल्स पार्ट में हमने लिखा है प्रिंट एफ एज इज ग्रेटर देन 18। सिंपल स्टेटमेंट है। अगर एज लेस देन 18 होगा तो इफ का जो ब्रैकेट है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करके आएगा, हम जो भी एज डालेंगे एज में एज इज लेस देन 18। अगर नहीं एज हमने 23 पुट किया है इनपुट में, देन कंट्रोल इफ में कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स होगी एंड देन कंट्रोल कम्स टू एल्स पार्ट एंड प्रिंट एफ एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब एज इज ग्रेटर देन 18 से ज्यादा है एज 23, ये प्रिंट होकर आएगा। नंबर 3 इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट में itself contain another if statement is known as nested if statement। देखिए एक if स्टेटमेंट हमने प्रोग्राम में लिखा है, उसके अंदर एक और इफ का स्टेटमेंट है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। सिंटैक्स है इफ इन ब्रैकेट कंडीशन 1, हम पहला इफ दे रहे उसके कंडीशन 1 ओपन ब्रैकेट, उसमें अंदर एक और इफ की कंडीशन है, इफ कंडीशन 2 नंबर 2 इफ की कंडीशन 2 उसके ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट 1। अभी ये जो नंबर 2 कंडीशन का इफ है उसका एल्स पार्ट हम पहले लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए जो नंबर कंडीशन 2 इफ, जो नंबर 2 इफ है उसका जो एल्स पार्ट है उसका स्टेटमेंट इन ब्रैकेट में, और जो एल्स पार्ट है वो क्लोज एंड देन सेकंड इफ क्लोज एंड देन एल्स पार्ट ऑफ फर्स्ट इफ, जो पहला इफ था उसका एल्स पार्ट लिखेंगे, फिर उसका स्टेटमेंट 3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट x एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो 1 का जो एल्स पार्ट है मतलब स्टेटमेंट 3 का वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट इफ कंटिन्यूज टू परफॉर्म। अगर इफ 1 की जो कंडीशन है वो ट्रू है तो वो इनसाइड द इफ, मतलब इनसाइड इफ में अनदर 1 इफ है, वो इफ की सेकंड कंडीशन चेक करेगा।
टेस्ट इफ कंडीशन ट्रू, वो कंडीशन ट्रू को भी चेक करेगा. इफ कंडीशन टू इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड द सेकंड इफ. मतलब जो सेकंड इफ में जो कंडीशन दी हुई है वो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए. अदरवाइज इफ द कंडीशन 2 इज फॉल्स देन कंट्रोल गोज टू एल्स पार्ट ऑफ अ सेकंड इफ. मतलब जो इफ का जो सेकंड इफ का जो पार्ट है उसके एल्स पार्ट को कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा एंड स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट एक्स एंड फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट एक्स को. फ्लोचार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. अभी मैं आपको फ्लोचार्ट के थ्रू समझाऊंगी. अगर आपको सिंटैक्स के थ्रू समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखिए. ये जो फर्स्ट है टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री के पास वो कंडीशन इफ का जो फर्स्ट पार्ट है इफ कंडीशन 1 वो है एंड यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स 2 लाइन्स है. अगर ये इफ की कंडीशन 1 ट्रू है तो कंट्रोल गोज टू ट्रू पार्ट देन इट गोज टू सेकंड इफ. मतलब नेस्टेड इफ में हम इफ के अंदर और एक इफ लिखते हैं ना, तो अगर ये फर्स्ट इफ ट्रू है तो वो सेकंड इफ की जो कंडीशन है वो भी ट्रू है और फॉल्स है वो एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम का सेकंड इफ के पास आएगा. फिर सेकंड इफ में सेकंड कंडीशन में आने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकंड इफ का जो फर्स्ट पार्ट है इफ का कंडीशन का जो है स्टेटमेंट 1 वो एग्जीक्यूट होगा. इफ द कंडीशन 2 मतलब सेकंड इफ जो अगर फॉल्स है तो उसके एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है सेकंड इफ के वो एग्जीक्यूट होगा. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने का एग्जीक्यूशन. इफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इफ इज फॉल्स, अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो कंट्रोल गोज टू डायरेक्टली द फर्स्ट इफ एल्स. जो फर्स्ट इफ का जो एल्स पार्ट है वहां पे जाके वो जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए एंड देन आफ्टर दैट कंट्रोल गोज टू स्टेटमेंट एक्स. मतलब अगर इफ की फर्स्ट इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो सेकंड इफ में जो नेस्टेड इफ है उसके अंदर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन के एल्स पार्ट में आकर एग्जीक्यूट करेगा. अगर आपको इस पॉइंट में इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं और एक वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड आगे मैं प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूशन करके भी वीडियो अपने बनाकर चैनल में पोस्ट करने वाली हूँ. तो आप अधिक जानकारी के लिए वो भी देखिए. And thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. Thank you so much guys for watching my video.